Students, now we are going to do questions based on ages. There are more questions, and this type of questions are very important, and it has been asked many a times in exams. And same type of questions you will relate it with in 9th standard as well as in 10th standard. So we'll do same type of questions. We'll start with question number 51. What is given here? Rakhi's mother is 4 times as old as Rakhi. After 5 years, her mother will be 3 times as old as the she will be. Then find the present ages. Ages means what? We have to find the age of Rakhi as well as the age of mothers. Okay, mother. Now if you read the first line, it is given that there is a relation between Rakhi's age and her mother's age, that is it is 4 times. And after that one more statement is given that after 5 years, sometimes कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा आएगा आफ्टर 5 years, यानी कि 5 साल बाद के बारे में केस हो सकता है, या फिर 2 साल बैक जाएंगे तो उस केसेस आएंगे. सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव टू रिलेट आवर इक्वेशंस. नाउ विल write the equations according to our question. Now according to our question, that is 51, it is given that Rakhi's mother is 4 times the age of Rakhi. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? राखी mother is 4 times the age of Rakhi. Times means what? Multiplication. Okay, so now this way you can write it, or you can write it in rough, and from that you can relate it your values. Now अभी ये सोचो कि राखी का एज रखो x के मदर का एज रखो x, जिससे हमें इक्वेशन बहुत इजीली मिल जाए. सो इफ आई कीप राखीज मदर x, देन राखी एज विल बी x/4, क्योंकि नीचे चला जाएगा 4. अगर मैं राखी का एज रखता हूँ x, देन इट विल बी ईजियर टू रिलेट द एज ऑफ मदर. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दैट, if I take let age of Rakhi be x years, then age of mother will be how much years? तो यहाँ पे अगर मैं x रखूँगा तो 4 into x, it will be 4x. So mother age will be now 4x years. ऐसे आपको रिलेट करना है. तो एजेस के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशंस दिया रहता है. सो उस कंडीशन से हमें वो रिलेशन बनाना है. अब ये हमें क्लियर हो गया, राखी का एज x ईयर्स है, मदर का एज 4x ईयर्स है. अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में जाते हैं. व्हाट इट इज़ गिवन आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years मतलब क्या? जैसे कि मान लो आप 2020 में हो, तो आफ्टर 5 years कौन सा कंसिडर करोगे? 2025. कैसे? यू विल ऐड +5. अगर मैं बोलूँ बिफोर 2 years, यानी 2 साल पहले की बात करूँ, सो व्हाट इट विल बी? 2018 अकॉर्डिंग टू 220. सो आफ्टर और बिफोर का रिलेशन ये ध्यान रखना है कि आफ्टर आया मतलब यू हैव टू ऐड दैट नंबर ऑफ ईयर्स, बिफोर आया तो यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट नंबर ऑफ ईयर्स. सो आफ्टर 5 years, एज ऑफ राखी एंड एज ऑफ मदर, क्या क्या वैल्यू होगा ये देखना है हमें. हमने एज ऑफ राखी क्या लिया था? x ईयर्स. तो 5 साल के बाद x+5, और एज ऑफ मदर 4x था, उसमें हमने +5 किया, दैट इज़ 4x + 5. समझ में आया रिलेशन? तो बिफोर होता तो हम माइनस कर दें, यहाँ पे आफ्टर दिया हुआ है. ये स्टेटमेंट करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन से रीड करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, what it is given? It is given that after 5 years, her mother will be 3 times as old as Rakhi. Okay, mother का जो age होगा 3 times the age of Rakhi. किसने बोला? क्वेश्चन के स्टेटमेंट ने कहा है. सो कब? जब आफ्टर 5 years पास हो जाए. Now what is the age after 5 years? Mother's age, that is 4x + 5. And what about the age of Rakhi? That is 3 into whatever the value of age of Rakhi after 5 years, we'll write it in that way. Now you got the equations. Now what we'll do? We'll solve it. So if I solve it here, I have to remove the bracket. That is 3x + 15. x को एक साइड जमा करना है और नंबर्स को दूसरे साइड पे.
4x माइनस 3x, x 15 माइनस 5 इज 10. स्टार्टिंग में क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द प्रेजेंट एज. जो हमने स्टार्टिंग में एज अज्यूम किया था दैट विल बी द एज एट प्रेजेंट. एज ऑफ राखी विल बी, वी हैव टेकन x ईयर्स स्टार्टिंग में, तो x क्या है 10, सो एज ऑफ राखी विल बी 10 ईयर्स. एंड एज ऑफ मदर वी आर टेकन एज 4x. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था, देख लेना एक बार. 4 multiplied by 10, that is 40 years. So in this way we have to find our questions based solutions regarding to the questions of ages. Okay, now we will see the next type of questions, we'll relate it. Now we will do question number 52. Monu's father is 26 years younger than Monu's grandfather. मोनू के जो पापा है 26 साल छोटे हैं उसके ग्रैंडफादर से. एंड मोनू से कितना बड़ा है, कितने एज से बड़े हैं, दैट इज़ 29 ईयर्स ओल्डर. देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज़ 135 ईयर्स. यानी कि अगर मैं तीन का एज, यानी कि मोनू के ग्रैंडफादर और मोनू के फादर, तीन के अगर एजेस का एडिशन लूँ तो 135 ईयर्स. देन व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच ऑफ देम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. नाउ विल रिलेट इट इन इक्वेशंस, विल स्टार्ट सॉल्विंग. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मोनूज फादर, ओके, मोनू के फादर का एज क्या कहा है कि हमें ये बताया कि उससे ग्रैंडफादर से वो 26 ईयर्स छोटा है एंड मोनू से 29 ईयर्स बड़े हैं. ओके, सो व्हाट विल डू, लेट द एज ऑफ फादर के एज को अगर हम x लेते हैं, ओके, फादर के एज क्यों लिया, बिकॉज यू कुड सी दैट टोटली यहाँ पे किससे रिलेट किया गया, फादर के एज से ही कंपेयर किया गया है. बिकॉज फादर जो है अपने ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं और मोनू से 29 ईयर्स बड़े हैं. सो नाउ इफ द एज ऑफ फादर इज x ईयर्स, तो ग्रैंडफादर का एज कितना होगा, तो ग्रैंडफादर तो 26 ईयर्स ज़्यादा होंगे ना. ग्रैंडफादर एज विल बी x plus 26 years. Okay, now after that मोनूज एज क्या होगा, तो फादर के एज से वो 29 ईयर्स छोटे हो जाएंगे. सो मोनू एज विल बी x माइनस 29 ईयर्स. छोटे होंगे ना, क्योंकि फादर जो है उससे 29 ईयर्स बड़े हैं. तो फादर के एज में से अगर मैं 29 ईयर्स माइनस कर दूंगा उतना ही एज मोनू का होगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लो फादर का एज 30 ईयर्स है, तो क्या कहा है, मोनू जो है, मोनू के जो फादर है 29 ईयर्स उससे बड़े हैं, तो इट मीन्स मोनू का एज कितना होगा. सो विल सब्ट्रैक्ट इट. सो फादर के एज में से अगर मैं 29 ईयर्स माइनस कर दूंगा तो 29 माइनस वॉट एवर द एज इट विल बी, माइनस 29 कर दूंगा तो उसमें से वो हमारा आंसर होगा. राइट. सो नाउ व्हाट विल डू, we will do according to the question में क्या दिया हुआ, तीन एज का अगर मैं एडिशन लेता हूँ, x प्लस 26 x माइनस 29, दैट इज इक्विवेलेंट टू 135 ईयर्स. ये क्वेश्चन में दिया था. नाउ x प्लस x दैट इज 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 135. 3x इज इक्वल्स टू 135 प्लस 3. So 3x is equals to 138. X is equals to 138 by 3. That is 46. X क्या मिला हमें, 46. यानी x किसका एज था, फादर का एज. So father age will be 46 years. Grandfather age will be 46 plus 26. 46 plus 26. That will be how much, that is 52 and 72 years. अब बाकी कौन रह गया, मोनूज एज. ओके, यहाँ पे ऐसे लिखना, मोनूज एज क्या होगा, इट विल बी, मोनू एज विल बी 46 में से 29 माइनस, तो कितना आया 17 years. सो इन दिस वे विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट एजेस व्हेन. इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्वेश्चन को बार बार रीड आउट करना है. Now we'll do question number 53.
In this question number 53, what it is given, a man is 10 times older than his grandson. ओके अब ये क्या कहा है कि ये जो मैन है वो अपने ग्रैंडसन से 10 टाइम बड़ा है. ओके 10 टाइम्स. सो मान लो मैन का एज अगर ग्रैंडसन का एज अगर 10 है तो मैन का एज कितना होगा, 100 होगा. इट मीन्स इन दैट वे अगर ग्रैंडसन का एज 2 ईयर्स है तो मैन का एज होगा 20. ओके इन दिस वे इट इज गिवन द रिलेशन. Now it is also given that he is also 54 years older than him. इसमें ये क्या कहा है, उसके साथ साथ ये 54 years उससे बड़ा भी है. Then find their present ages. दोनों का present age क्या है वो आपको identify करना है. Now we have read the questions. Now we'll try to frame our equations. Now in question number 53, we have gone through the questions. Now there are two things are given to us, that is grandson and man relation is given to you. Now it is given that man age is 10 times the age of its grandson. तो यहाँ पे बेस्ट क्या रहेगा, अगर मैं ग्रैंडसन के एज को अगर x लेता हूँ तो मैन का एज भी मुझे मिल जाएगा 10 इंटू एक्स. सो एज, लेट द age of grandson be x years. So age of man be how much years, that is 10 years. मैन का एज मिल गया मुझे 10 इंटू एक्स ईयर्स, राइट. सो नाउ इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट 10 टाइम्स तो है ही, उसके साथ साथ मैन का एज जो है वो ग्रैंडसन से 54 ईयर्स ज़्यादा है. सो 10x इज इक्वल्स टू x प्लस 54. सो शिफ्ट दिस वैल्यू. सो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 54. 9x इज इक्वल्स टू 54. x इज इक्वल्स टू 54 बाई 9 एंड x इज इक्वल्स टू 6. x इज इक्वल्स टू अगर 6 मिला तो ग्रैंडसन का एज क्या हो गया, 6 years, क्योंकि x ही वैल्यू रखना होता है. एंड एज ऑफ मैन विल बी हाउ मच, दैट इज 10 इंटू एक्स. सो हाउ मच, 60 years. ठीक है. सो इन we'll see the question number 54. The difference between the ages of two cousins is 10 years. 15 years ago, if the elder was thrice as old as younger one, then find the present ages. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना. नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्यूशन. क्या दिया हुआ है, दो कजिन के एज का डिफरेंस कितना है, 10 years ऐसा लिखा है. सो आई हैव टेकन ए एंड बी एज टू कजिन्स, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता है दोनों का क्या है. सो व्हाट विल डू, विल एज्यूम वन ऑफ द कजिन एज बी एक्स. सो दूसरे का एज भी हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा. अब इन दोनों में से कौन से एज को मैं लूँगा तो ईजी रहेगा. सो अगर मैं बी का एज अगर एक्स लेता हूँ तो एक्स विल बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड एंड इट विल बी ईजियर टू कैलकुलेट. सो बेटर ये रहेगा कि मैं बी को शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड में. तो क्या हो जाएगा, ए का एज क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स ईयर्स. सो व्हाट विल बी द एज ऑफ कजिन्स, सो लेट द एज ऑफ कजिन्स बी x and what will be the another value, that is x plus 10 years. ओके सो दोनों कजिन का एज तुम्हें अभी मिल चुका है, बराबर. तो ऐसे आपको ये वैल्यू फाइंड करना है. ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे लिखना. यू कैन राइट इट इन रफ एंड यू कैन फाइंड इट. सो नाउ वी गॉट टू एजेस, दैट इज वन एज विल बी x and another one will be x plus 10. Now what is the question given here, that before how much years, I think before 15 years, 15 years पहले. तो एज ऑफ कजिन क्या होगा, तो एज ऑफ कजिन विल बी, एक का एज हो जाएगा x माइनस 15, फर्स्ट वाले को 15 से माइनस करूंगा. वैसे दूसरे वाले को फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, इजी रहेगा. एज ऑफ सेकेंड कजिन विल बी हाउ मच, सो x प्लस 10 तो ऑलरेडी था, उसमें से मैंने 15 माइनस किया.
Why I subtracted 15? Because it is before 15 years. Before 15 years में मतलब minus, after होता तो plus होता. So if I solve it, what will be the value? It will be x minus 5 years. ये मिलने के बाद एक और कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, if the elder was twice as old as the younger one. अभी ये एज से तुम्हें पता चल जाएगा कि एल्डर कौन है, यंगर कौन है, इन दोनों में से. सो एल्डर विल बी x प्लस 10, तो उसमें से क्या मिला हमें, x माइनस 5. सो x माइनस 5 इज ट्वाइस द एज ऑफ द यंगर वन. सो यंगर वन कौन सा है, x माइनस 15, राइट. नाउ व्हाट विल डू, विल रिमूव द ब्रैकेट, इट विल बी x माइनस 5 2x minus 30. Now I'll try to solve it. It will be x will be shifted to the left hand side and number will be shifted towards the right hand side. So what will be the value now, minus x minus 25. X is equals to 25. So first cousin age will be 25 years and second cousin कितने साल का था, एक तो 10 था ऐड उसमें, 10 will be added, so 25 plus 10, that is 35 years. So in this way you have to solve it. Okay, so rest I'll give you worksheet, in that you have to solve it. So ये सारे ages के question थे. If you have any doubt you can ask me again and again, because ये सारे doubts should be cleared. Okay, otherwise you will be facing difficulties to solve this type of questions. Questions कुछ भी difficult नहीं है, बस statement समझना है और उसके according हमें solve करना है. Okay, thank you.